So in one day national conference on artificial intelligence and society, interdisciplinary perspective on social change, inequality and human future, being organized by Mahila Mahavidyalaya, Deora, Dev district of Maharashtra state. I would like to extend my heartfelt thanks to Professor Tatyaramji Sonde, Sir, Principal Mahila Mahavidyalaya, Deora, Professor Datta Kangalwar, Organizing Secretary of National Conference, and Professor Digambar Madhav Kangalwar, Department of Women Studies, Mahatma Gandhi Antarashtriya Hindi Vishwavidyalaya, for coordinating and providing the logistic facility, and to invite me to be a part of this very great academic initiative, and that is very much relevant and very important, and we can say this is the right time to discuss this kind of thing. So I am very much thankful for being a part of this very, we can say, the novel initiative taken by this college. Now I extend my best wishes and greetings to Professor Sajjad Salukhe sir, Dean Humanities, Dr. Bamu Chhatrapati Sambhaji Nagar, Professor Sadasiv Sargade sir, Principal Arts and Commerce College, Patoda, Professor Rajni Sikare Madam, Principal, esteemed faculty members, paper presenter, participants, ladies and gentlemen. Now, I would like to discuss over this topic in three parts. So in first part, or in first section, we are going to highlight over the concept, classification and component of the artificial intelligence. And in the second part, we will be discussing or covering that is the main topic or main theme of the seminar, that is the social perspective with regard to the here that we can say one that is about the artificial intelligence. So artificial intelligence that we say कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद कृत्रिम बुद्धिमत्ता इसके लिए जो सब सो एक बुद्धिमत्ता जो हमारी ह्यूमन बीइंग के अंदर गॉड गिफ्टेड है कि हम यहाँ सिचुएशन को देख रहे हैं, आप सामने बैठे हुए हैं और आप लोग इस धूप में इवन लॉट्स ऑफ फैसिलिटीज हैव बीन अरेंज्ड बाय द कॉलेज बट इवन यू आर नॉट फीलिंग सो मच कंफर्टेबल. सो उसके बाद भी अगर हम 2 घंटे 3 घंटे तक अगर हम व्याख्यान देते हैं तो वहाँ आपकी जो इमोशंस, आपके जो फिजिकल, जो आपकी साइकोलॉजी, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं अकॉर्डिंगली वी चेंज. सो दिस यूनिक काइंड ऑफ थिंग दैट इज only in the human mind. So when we transfer or when we implant or when we make a machinery, a system that we can see the computer system or the program which represent the human mind's reasoning capability, analysis, reasoning, emotions, sentiment, that is the artificial intelligence. So now here artificial intelligence refers to a branch of computer science that focuses on the creating machines or computer system capable of performing the task that we human beings are capable or we can perform. So whatever tasks that are to be performed by human beings, the same task or same activity can be done by effectively, efficiently and appropriately by the machine, by the computer system, and that concept is called artificial intelligence. So now these tasks including the learning, reasoning, problem solving, decision making, language understanding, perception and creativity. Now in a nutshell, the artificial intelligence is the ability of machine to stimulate or to replicate or to represent the intelligence or we can say the human mind or the functioning of the human brain. So the way we work, the way we behave, the way we reason, so if the same thing is being manifested or replicated by a machine, by a computer that you have seen robot, and few days back that was in the news, Calcutta University taught that is artificial intelligence, okay, and that was in a very debatable news. So now that is working as a live dog, okay, performing and acting and behaving. So that is the example of the artificial intelligence. Now the different components of the artificial intelligence. That is the second one. So machine learning that you might have heard, and machine learning is nothing just to grasp or just to derive the information or insight from the data. And data means not just 100 people, 200 people, even thousands and millions of people. How the people are thinking, how the people are, what kind of information they are liking.
how they are thinking, what they want to say, what they want to prefer, okay, what kind of thing they want to have. So now these things are going to have a very drastic change in the politics, in the overall societal structure. So that includes the recommendation system and fraud detection. That is the machine learning. Now next, that is the natural language processing. And natural language processing, that is interpreting and understanding the different language. Okay. So the way, suppose we are speaking here, that's not possible to speak in Marathi, but at the same time or at the same time, you can listen the same thing in the Marathi language in a very good way, as a very good speaker of Marathi can speak. So that is the language, the natural language processing. That is the second component. Third, that is the computer vision. This example that we find in the medical sector, you might have seen like what we call X-ray, then MICR, okay, and different types of pathological tests and reports where the different types of images are taken. So the images that are taken by the advanced technology, advanced machine, sometimes there might be some fault when they are being read by the human being, and that has his or her own limitations. But the thing is what kind of disease the particular person is suffering or having or that is growing in the body. So with the help of the image that can be read and that can be interpreted for what problem is going in case of cancer, in case of neurological disorder. So the things can be very well interpreted through the image. So that is the computer vision. So it allows computer to interpret and understand the visual information from images. This example we see the face recognition and medical image analysis. Now then robotics, and robotics that we have examples recently the Dalgotia, that is a very hot spot. So robotics, that is the combination of what we can say the artificial intelligence and mechanics. So now here it is a combination of AI and mechanics system to create intelligent robots capable of performing the physical task. That is the industrial robot and the delivery robot that we might have adopted in the different developed country, and very soon we will be observing in our country in different remote areas as well. Now next, that is the expert system. So expert system means this is the form of, this is a kind of the artificial intelligence that works as an expert. So as we people are here sitting, as we are giving expertise, as we have made in-depth study, and on the basis of that we are sharing our insight, understanding and experience. So the same kind of thing can be developed in the facility with the help of AI, and that can work as an expert. So that is the expert system. So computer programs designed or developed to mimic or replicate the decision-making ability of human experts. For example, the medical diagnosis system that works as an expert system, and financial advisory system through AI. Now we come to the types of artificial intelligence. So there are three types of artificial intelligence. One that is called weak form of artificial intelligence. Another that we can say the moderate or the average or the normal AI, the general AI that we say, and third that is the super AI. So first that is the weak AI. So artificial intelligence developed for executing or performing a particular task, that is the specific AI. And specific AI here we can say the AI being used by the different telemarketing companies to, and we can say the different like Swiggy and Zomato and McDonald's, they are delivering products to the robots. So that is an example of narrow AI. So that AI, that robot or that drone has been developed for executing a particular task that is not able to perform another task, that only for one. So that is the example of weak AI. Second, that is the general AI, and general AI means AI are the mechanism of the system of the computer system that has been developed to replicate the human being performance. So the way we are speaking, the way we are listening, the way we are suggesting and guiding, so the artificial intelligence are the robots which have been prepared, which can take or can replace the human being, that is called general AI. Even it is under the development process. As of now, to my knowledge, and even whatever example I have seen, there is not any specific robot or any drone or any system or any AI that can replace the absolutely human being. So that is still under the development phase. Work is on.
Now next, there is the third, and it is a hypothetical, and I think it will remain hypothetical forever. And that is important for the importance and the relevance of the human being. And only then we can survive and we can do the thing. That is the super AI. And super AI means the AI artificial intelligence that can surpass, means the way we are working and the potential we are having. So more far better the AI can have. So that is the super AI, but that is not in existence. So that's why it is said to be the hypothetical AI. But the day when it comes, then it will be very challenging for all of us, and it will replace the human being. And in the later phase, the things we are going to discuss, where the areas or the sectors where there is still today, or even for a long time, the human being importance will remain as it is and will be very important. But when the super AI will come, then we will be nowhere. But be happy, as of now, it is a hypothetical concept and it is not in existence. So that is just enough theoretical context. Now we come to the applications of artificial intelligence. So the major areas there are all sorts of fields everywhere the AI is being used moderately, or we can say the normally, or in a very great field it is being used. But the major areas where it is being extensively used, so they are as the healthcare. In the form of, like we can say, the AI helps doctor diagnose diseases like cancer, heart disease, and neurological disorders. Then they use in medical imaging analysis like X-ray, MRI, and CT scans. So now we need not to wait for the doctor. Even we can give it to the machine, and the machine will tell what kind of problem you are having. Even the blood test report you are having, or the blood sample you are having, you can give the AI, and AI will give us the detailed report and very comprehensive report that is not possible manually asking them. Then the support robot assisted surgery in higher precision. That is very much popular in the Western countries and the developed country, and even in our country also, but not that is very much popular and very frequent. So the robots are doing a very successful and very precise surgery. So that is the use in this domain. Now help in drug discovery and development, that is also very great use. Next. Okay. Then AI helps in the drug discovery and development. तो जो आज की डेट में जो दवाओं का जो उत्पादन हो रहा है, जो दवाओं का जो विकास हो रहा है, जैसे आपने देखा कोविड की बीमारियां, और कोविड की बीमारियों में जब ड्रग का जो डेवलपमेंट हुआ तो कुछ हुए, उसमें आपने देखा कि मध्य प्रदेश के और भी अपने महाराष्ट्र के बहुत सारे जो बैकवर्ड सेक्शन थे, वहाँ पे उन लोगों को यूज किया गया और उनको कोई भी बैकअप या उसके लिए कोई सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन नहीं दिया गया, उनको मरने में छोड़ दिया गया। तो एआई आने से अभी ये हो गया है कि इस तरीके से ह्यूमन बीइंग के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, एआई इस एक्सपेरिमेंट को खुद करेगा, जिससे ह्यूमन लॉस और जो ह्यूमन राइट के अगेंस्ट जो प्रैक्टिसेस हो रही है वो काफी जगह तक कर्व हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी। Now AI chatbot provide virtual health consultation. So suppose if we are feeling some fever for the last few days, 3 days, 4 days, so there will be some kiosks. तो जैसे बैंकों में आप कियोस्क देते हैं, आप पासबुक डालते हैं, इन्फॉर्मेशन वो आपको अपडेट करके देता है। इसी तरीके से आप जब डॉक्टर से देखने होंगे, जब लाखों करोड़ की आबादी है, तो आप जाएंगे वहाँ बताएंगे कि AI मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो आपको अगर बहुत मेजर प्रॉब्लम हो बोलते हैं आप ये मेडिसिन ले लीजिए, इस डॉक्टर से इससे जाके मिल लीजिए। So that is the AI chatbot provides virtual health consultation. और आपको किस डॉक्टर से जाना है, कौन से सेल में जाना है, क्योंकि हम लोगों को कई बार बीमारियां होती हैं, हमें ये नहीं पता होता है कि हम किस डॉक्टर के पास जाएं, तो वो हमें वहाँ पे कंसल्ट कर देगा, आपको ये बीमारी है तो आप इस एक्सपर्ट के पास इस सेक्शन में चले जाइए। So that is the concept. Next, finance and banking. It gets fraudulent transaction in the banking system. जैसा कि रतन मैडम ने बहुत अच्छे से तमाम सारी चीज़ों को उन्होंने बहुत एक्सटेंसिवली शेयर किया और जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है, और आपको समझने में उत्तर से मराठी का और इधर से इंग्लिश का दोनों बैकअप कवर करने का जो गैप आ रहा है। तो जो आज के डेट में आप देख रहे हैं तो बहुत सारे जो डिजिटल अरेस्ट की बात कर रहे हैं वो तो एक अलग ही वे है, लेकिन आज की डेट में बहुत सारे कि आपका जो एटीएम लॉक हो गया है, मैं आरबीआई से बोल रहा हूँ, ऐसे हमें लगता है आप में से 2-4 लोगों ने इस तरीके के फ्रॉड और फेक कॉल अटेंड किए होंगे आपने, तो आप अपना नंबर बताइए, नंबर बताइए, फिर बताइए, ये बताइए, वो बताइए, और उस तरीके से वो फ्रॉड कर रहे हैं। तो ये जो अनयूजुअल जो इंफॉर्मेशन जो आ रही है, दैट कैन बी
prevented and that can be controlled. Now, use for algorithmic trading in financial market. Stock market में जो algorithmic जो trading है, that is very much important and that is being extensively used in the stock market. Then next, help in credit scoring and loan approval. So now today this work has been completely shifted to the AI. So now the people are the workmen, are the workers, are the people having expertise, they are doing this work. So now they are gradually shifting this work to the AI and they are giving the input and information to all the system. And system is telling whether you deserve for the loan or if you deserve for the loan, then what should be the limit and what should be the different criteria and conditions. So that is the loan approval and credit scoring. What is your credit score? And accordingly the loan amount can be decided. Then AI can provide 24/7 customer service. That is not possible for a human being क्योंकि हम human being 12 घंटे, 8 घंटे, 16 घंटे ही हमारे प्रधानमंत्री 18 घंटे तक काम करते हैं, उनकी भी एक अपनी लिमिट है और हम लोग 12 घंटे, 16 घंटे हम लोग काम करके थक जाते हैं. लेकिन ये चीज AI में नहीं है. AI can work 24/7. Anytime you can ask anything and that will respond. That is not a human being. Now next, assist in risk management and financial forecasting. Now there is the education sector and we all of us, even Madam has also discussed about this thing. So it enables the personalized learning system. तो आज जो हमारी कस्टमाइज कई बार जैसे मैडम कहते हैं कि बहुत सारे तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, कई लोग मीडियोकर होते हैं, कई लोग एडवांस लर्नर होते हैं. तो हमारी हर किसी की अपनी अपनी अलग जरूरतें होती है. सब लोग यहाँ पे आप बैठे हुए हैं और हम एक तरीके से एक देश में अपने लेक्चर को देते जा रहे हैं. यहाँ पे कोई कम समझने वाले, कोई ज्यादा समझने वाले, कोई बहुत ज्यादा समझने वाले हैं या कोई बिल्कुल एवरेज है, साइंटिफिक है या वो इसको नहीं समझ रहे हैं. तो वहाँ पे किसकी क्या जरूरत है, किस चीज से किसको कंटेंट डिलीवर करना है, दैट इज द कस्टमाइजेशन. ओके, कि हमारी क्या जरूरत है, हम किस पेज से लर्न करें, दैट इज पॉसिबल थ्रू AI. सो नाउ इट enables the personalized learning system. Then AI tutors provide individual guidance to the student. So what kind of information and what kind of thing you need and the area where you are lacking that you can ask. Next, help teachers analyze student performance and learning patterns. So now, even we human beings, we are having our own limitations. So even we are having 20 years, 25 years, 30 years, 40 years, many teachers, they say we are having this much experience. But many times we observe that they fail to understand the problem that is happening with a particular student. So now, that can be done by the AI. So AI can understand what. So the performance, what is your performance and what is your learning pattern? Means in what way you learn, whether you learn fast, you learn slow. So according to your learning pace, they decide or it can be decided that which activity should be given the material and what should be the gap Teacher analyze the student's performance and learning pattern. चलो भुतला कुठतो रे कंटिन्यू फोन हो रहा है. Now it is helping a lot in the preparation of result, your performance, your achievement level. And achievement, you know, that is a comprehensive achievement, continuous and comprehensive achievement. That is being practiced not in the higher education, to my knowledge, but it is being practiced in the school, in KPS, in Navodaya Vidyalaya. And what I have experienced that the teachers are preparing all the time. They are engaged in preparing n number of anecdotal records, and even that is not getting reflected in the result. But now with the use of the AI, this continuous and comprehensive assessment can be completely reflected in the result. So that is possible through the AI and it is being used. Now support intelligent educational platform e-learning. So SWAYAM platform and different online platforms that we are using, that is the example of this AI. Now next, in the transportation sector, use in self-driving cars and autonomous vehicles. Then improve traffic management system and smart cities. I think no need to discuss. Now we come to the retail and e-commerce. So in retail, provide product recommendation system. Now this is a very important thing. Like everyone, I think hardly there might be a single person who is not using the online e-commerce platform. So whether you might be using the Flipkart or Amazon. So once you purchase any particular commodity, or one time, two times, three times, so on the basis of that, Amazon starts giving you the information and the ad and the special benefits or the special rebates, the kind of product you are regularly purchasing. So now this recommendation system that is also being used. Then enable chatbot for customer support and improve inventory management and demand forecasting. Now support cashierless or cashless stores.
Now then we come to the security and defense, where it is being extensively used, and that we can see the war that is happening with Iran and Israel, America. So now the drones are being used and they are very pinpointed and exactly targeted the particular location, and there they are being dropped and they are destroying the location they are targeting. So this is the use, and this is a very lethal use of AI. So now using surveillance and facial recognition system then helps in cybersecurity threat and detection. Support autonomous drones and military robots that we have recently discussed. Now assist in strategic defense planning and intelligence analysis. Then entertainment and media, that is very much important and relevant for us, and this was also in news with regard to the second time election of Donald Trump. और डोनाल्ड ट्रम्प हमारे भारत में चर्चा का वो दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उनके इलेक्शन को लेकर के रशिया ने कैसे इंफॉर्मेशन को यूज किया, फेसबुक इंफॉर्मेशन को, और कैसे पब्लिक के सेंटिमेंट को, पब्लिक के जो माइंड को कैसे उनकी तरफ डाइवर्ट किया, और वोट बैंक कैसे लोगों के चेंज हो रहे। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एआई that is being used for changing the mindset and diverting the mindset of the people and getting movies, music, so on streaming platform. Then create AI generated music as Madam has already told. Lots of videos, pictures, images that are being created here. So now that is being used and it has a very good scope, and bad scope also when it is being used negatively. Now improve video game characters with intelligent behavior. Then assist in content creation and editing. So content creation and editing that has been discussed with regard to the research also, but there are different other areas like news coverage, and for editing the news or preparing the news within a short frame of time, the AI can create the news, edit the news, and the news can be immediately circulated. Now we come to the advantages of artificial intelligence. So what are its advantages? Why we are induced or why we are inspired to use the AI? So definitely it is providing us lots of benefits, lots of good things, are positive things, and that's why we are sticking to this AI, even knowing that it is going to create challenge for the human brain, but we can't resist. So now first, that is the detection of human error. So here the system AI operates on algorithm and data-driven model. So as I have already told you that we human beings have own limitation to process the certain number of the 200, 300, 400. But when the responses are the, what we can say, the opinion of millions of people, or lakhs of people, or crores of people, we have to analyze. So it's not possible. Even the very normal system that can fail here. So now that can be used, and here this is the platform where the detection that normally happens are committed by the human being, that can be significantly reduced. Then high speed processing. So it can automate the routine tasks such as data entry, document processing, transaction handling, and this way it can automate the repetitive and the routine activity and the activities which are based on particular formula or certain, we can say, depends on a certain formula or certain technique. So that techniques are that program can be given to the computer and computer can start working and the work can be executed. And this way, this increases the speed of processing the work. Next, automation of repetitive tasks. Here, for saying it is very easy and in a very short amount of time we can say. But this is the thing which is going to create problem for the unskilled and semi-skilled worker. So the tasks which are repetitive and routine, so like preparing the documents and writing the records, and then we can say analyzing normal analysis of the records. So this work can be done by the computer work. And now you can see carrying the product that might be observing the different kinds of machines being used for carrying the product from one place to another place. So now here it is taking away the job or the employment opportunity of the unskilled people. So now this automation of repetitive tasks is going to be very challenging for us. That's why we want to say working capability that we have told you that is only possible with the AI, not with the human being. Then improve decision making.
then handling risky and dangerous tasks. Yes, this is the very most important that we need to discuss here. So AI-powered robot can perform tasks like the bomb disposal, then mining, firefighting, disaster rescue, and आपल्याला space समजा नाही exploration. आपल्याला समजा नाही Normally we observe even sometimes before in Uttarakhand and many other places in mining. So नीचे पहाड़ टूट रहे हैं, ऊपर से एक बहुत बड़ा अगर कोई पार्ट अगर टूट किया जाता है तो वहाँ पे कई सारे हमारे जो है वर्कर्स जो लेबरर्स हैं, जो मजदूर हैं, जो श्रमिक जो हमारे समाज के ही जो हिस्से हैं वो उसमें हताहत हो सकते हैं और बहुत लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग मर सकते हैं जो साइड पे काम कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे AI का यूज हो सकता है। और जैसे ड्रग डेवलपमेंट और डिस्कवरी में जो एक्सप्लोरेशन में जब आयल एक्सप्लोर करते हैं या जो डिफरेंट एडवांस जो एक्सप्लोरेशन होते हैं, जो रिसर्च होते हैं, जो इनोवेशन होते हैं, वहाँ पे जहाँ पे कि हम ह्यूमन को रिस्क पे रख के काम करते हैं, वहाँ पे हम ह्यूमन को यूज करने के लिए AI will do the work and the human fatality would be reduced. तो वो कम हो जाएगी fatality जो है। Better data analysis and management और better data analysis and management as I have already told you, मैंने आपको बताया कि जहाँ पे हम लाखों करोड़ों इवन अमेरिका में जो अमेरिकन से डोनाल्ड ट्रम्प को लेकर के कौन क्या नेगेटिव है, सब प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी, अभी 29 में इलेक्शन आएगा या अभी हमारे कुछ दिन पहले हमारे महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ, फिर हमारे फडणवीस साहब की गवर्नमेंट आई। तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो किसी की हो, फडणवीस साहब की हो, शिंदे साहब की हो, किसी XYZ की हो या प्रधानमंत्री चाहे वो मोदी की हो, चाहे वो राहुल गांधी के लिए इलेक्शन हो रहा हो, तो everyone is always trying to get the power or get the mileage of the voters. They want to gain the support of the people. तो लोगों को सपोर्ट चाहिए। तो उस लोगों के सपोर्ट में हमारी क्या अच्छी चीजें हैं, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, तो जो लोग हमारे बारे में अगर अच्छा सोचते हैं तो अच्छी चीजों को और ज्यादा प्रोजेक्ट करना है, उसको और ज्यादा स्प्रेड करना है सोशल मीडिया डिफरेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू। और जो हमारे बारे में जो निगेटिव चीजें जो है उसको उसका डिस्क्लेमर या वो क्यों गलत है उसका हमें सफाई देकर के लोगों में जो भेजना है, जिससे जो हमारे बारे में जो एक रॉन्ग परसेप्शन जो डेवलप हो रहा है हम उसको डिस्ट्रॉय करके लोगों ने अपनी इमेज को मेंटेन करना है और फिर हम अगली बार सत्ता में अपनी जगह को बरकरार रखना है। तो ये जो डेटा एनालिसिस और जो मैनेजमेंट का जो काम है दैट इज पॉसिबल थ्रू AI। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, दैट नो नीड टू डिस्कस अबाउट दिस। देन कॉस्ट रिडक्शन, व्हेन द थिंग्स आर बीइंग ऑटोमेटेड मींस वी आर रिप्लेसिंग thousands of workers by one artificial intelligence or by one particular machinery, so that is definitely going to reduce the cost of the 1,000 or 100 workers. So definitely the cost will be automatically reduced. तो जहाँ पे हजारों लोग सैकड़ों लोग किसी काम को करते हैं, अगर वहाँ पे एक मशीन काम करेगी तो डेफिनेटली वहाँ पे क्या हो जाएगा कि उसकी कीमत कम हो जाएगी। और उसी के साथ साथ जो हमारे समाज की जो समस्या है, जो असमानता की बात है जिसको हम आगे अभी करने वाले हैं, वो असमानता यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, उसके लिए ओपन स्पेस है। देन एडवांसमेंट इन द हेल्थ केयर, मैंने आपको बताया कि कैसे हेल्थ केयर में एडवांसमेंट होगा कि जो हमारे रिपोर्ट्स होंगे उसको हमारा AI पढ़ के हमें एग्जैक्ट एक्यूरेट प्रॉब्लम बताएगा कि हमारी प्रॉब्लम क्या होता है। कई बार हम लोग देखते हैं कि प्रॉब्लम X होती है और डॉक्टर Y बता देता है, तो हम लोग अच्छे डॉक्टर को अप्रोच नहीं कर पाते हैं और जो भी डॉक्टर हमारे पास में हमारी लिमिट पे कैपेसिटी में होता है हम उसके पास जाते हैं और वो बोलता नहीं आपको तो ये बीमारी ये दवा खा लो और उसको बीमारी कुछ और है। तो ये जो समस्याएं हैं ये समस्याएं कम हो जाएंगी और ड्रग की जो डिस्कवरी है बहुत इफेक्टिव और बहुत अच्छी मेडिसिन हमारे सामने आएगी। ये हमारे लिए दैट इज द बून ऑफ AI। ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज होगी जो निकल के आएगी। और हर एक चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होते हैं, तो उसमें ये पॉजिटिव साइड है दैट वी नीड टू बैलेंस। देन इनहैंस सिक्योरिटी सिस्टम, हमारा सिक्योरिटी सिस्टम कैसे इनहैंस हो जाएगा वो आप देख सकते हैं। इजराइल अमेरिका के कैसे कर रहे हैं और कैसे वो बॉम्बिंग कर रहे हैं और इसी तरीके से सर्विलांस के माध्यम से हम अपने कंट्री के जो बॉर्डर है और जो हमारे इंटरनल जो इस तरीके से कंफ्लिक्ट या जो इंटरनल जो डिस्टर्बेंस होती है उसको हम AI के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं बाय वे ऑफ हैविंग द राइट टाइम इंफॉर्मेशन एंड डिस्पोजिंग द प्रॉब्लम। Then next, supporting education and learning, that there is nothing new. Then supply chain management. So with the help of drones, with the help of robots, this supply chain management can be problem can be solved and can be optimized. Then smart automation in the manufacturing. So smart automation that we can understand the different machinery are being used, and the automation, with the help of automation, the rate or the pace of production that is continuously increasing and the cost is gradually coming down. तो हमारी जो उत्पादन की जो रेट है, जो दर है वो बढ़ रही है और उसकी कास्ट जो है, उसकी जो लागत है वो गिर रही है और साथ ही साथ उसकी गुणवत्ता जो है वो बढ़ रही है। नेक्स्ट, बेटर फाइनेंशियल सर्विसेज। So the different advanced financial services, now we need not to go to our approach the banks and be in queue for the long hours। आप
हमें से लग रहा है जितने बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने वो जमाना भी देखा होगा जब 1,500 रुपए लेने के लिए 2-2 घंटे 3-3 घंटे इवन कई बार तो लड़ाई झगड़े तक भी हो जाते थे। तो वो जो समस्याएं आज हम बैठे बैठे जो कर रहे हैं हम अपने यूनो के थ्रू या डिफरेंट जो हमारे बैंक के जो अपने AI बेस्ड जो एप्स हैं उसके थ्रू जो हम कर रहे हैं और जो हम ये चैट जीपीटी सॉरी जो हम QR कोड और जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो हम पेमेंट कर रहे हैं चाहे वो AI इनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज हो, ये सब में कहीं ना कहीं AI का यूज हो रहा है और इससे हमारी जो वित्तीय जो लेन देन है जो ट्रांजेक्शन है उसकी जो रेट उसकी बढ़ रही है और उसमें एफिशिएंसी भी आ रही है। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। So AI helps in climate change, track wildlife, then manage natural resources and predict the natural disaster. So what kind of means today? I think that's a very popular. Everyone are getting this. जब हमारे महाराष्ट्र में साइक्लोन आने वाला है, तो हम सभी के पास पहले से ही न्यूज आ जाती है। जो मछुआरे हैं, जो फिशरमैन हैं, उनके पास न्यूज आ जाती है कि आप आज समुद्र में ना जाएं। आज की जो है स्पीड से तूफान आएगा और हो सकता है कि उसमें कुछ फैटिलिटी या कुछ उसमें रिस्क हो जाए। तो वहाँ पे न्यूज आ रही है। That is the improved environmental monitoring, and not only for the securing the lives of the human beings, even for preserving the environment, it can be used. So now we come to the major limitations of the artificial intelligence. तो हम बात करें कि artificial intelligence की limitations क्या है और जहाँ पे artificial intelligence की limitations है, वहीं पे हमें दिखता है कि हम human being की जरूरत है और रहेगी। तो वहाँ पे पहला है lack of human creativity। हम ह्यूमन बीइंग के अंदर जो क्रिएटिविटी है वो क्रिएटिविटी हम कंप्यूटर के अंदर या रोबोट के अंदर या AI के अंदर जो हम एक पर्टिकुलर क्रिएटिविटी को डालेंगे बस वो उसी सर्टेन क्रिएटिविटी को रेप्लिकेट करेगा। बट वी ह्यूमन बीइंग नॉट थिंकिंग ऑल द टाइम इन द लिनियर वे आर इन द सेम डायरेक्शन आर ओनली वन पर्टिकुलर थिंग। इवन समटाइम्स वी थिंक आउट ऑफ बॉक्स एंड आउट ऑफ बॉक्स इज व्हाट दैट इज द क्रिएटिविटी। तो हम जो आउट ऑफ बॉक्स हटके जो सोचते हैं वो चीज जो है हम ह्यूमन बीइंग्स के पास है, वो AI के पास नहीं है। नेक्स्ट, नो इमोशनल इंटेलिजेंस। AI आपके सामने खड़ा है, वो आपको कुछ डिलीवर कर रहा है, आप रो रहे हैं या घर में कोई एक्सपायर हो गया है, वो ड्रोन आपके घर में लेके डिलीवर करने आएगा, तो वो ये नहीं देखेगा आपके घर में कोई सपोज थोड़ी देर पहले कोई एक्सपायर हो गया है, तो वो अपना आपको सामान देगा और वो जाएगा। He will not, it will not take into the consideration what is happening to you. वो नहीं बोलेगा नहीं आपके साथ क्या हुआ, थोड़ी देर उसके बातें नहीं करेगा, आपको इमोशंस उसके पास नहीं। That has been designed to deliver the product and it has to work only that. तो ये चीजें जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस आपके हमारे इंटेलिजेंस को इमोशंस को समझने का इंटेलिजेंस उसके पास नहीं है and that is the area where we human beings are perfect. Next, high development cost. It has a very huge cost and that can't be borne by the small business organization or by an ordinary individual. So that can be afforded by the large enterprises or the big economies or the developed country, not by the small country or the poor economy. Then job displacement, that is the automation. So automation led by AI, that is displacing or killing the eating up the job of the skilled and unskilled worker, even in some certain cases. Skilled worker also, semi-skilled and unskilled not only, even the skilled also, that is getting. Now next, that is the dependence on data. This AI has its own limitation. It works on the basis of data. It takes the data, as much as input, as much as information you feed it, you give it, on the basis of that, or only within that limitation, it will provide you information. अगर आप उसे 1000 लोगों की इंफॉर्मेशन देंगे, दैट इंफॉर्मेशन माइट बी बायस्ड, आप सब लोगों ने रिसर्च किया होगा, शोध किया होगा, तो कई बार हम लोग कन्वीनियंस सैंपलिंग और पर्पजिव सैंपलिंग तरीके की चीजें अडॉप्ट कर लेते हैं और अपने पड़ोस के कॉलोनी में उठते हैं, वही 100 लोगों का सर्वे करके और बोलते हैं कि हमारा तो काम हो गया, अब बस एनालिसिस करना है। तो ऐसे केस में तो आपकी एनालिसिस जो है वो आपको लिमिटेड है, तो आप डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड दैट यू कैन नॉट जनरलाइज। आप उसे सामान्यकृत नहीं कर सकते कि आप उसे सामान्य कर लें, आप उसे जो है महाराष्ट्र से लेकर के आप ऑल ओवर इंडिया में या तेलंगाना में या तमिलनाडु में आप वहां भी बोले कि ऐसा हो रहा है, नो। क्लियर? सो हियर दैट इज द डिपेंडेंस ऑन डेटा, दैट इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस AI. Then the lack of common sense. So as we already know that AI that is based on the computer and computer since inception are for a long time we have been listening computer is a nonsense machine. कंप्यूटर के पास कोई अपना कोई सेंस नहीं है, उसके आप जो इन्फॉर्मेशन दोगे या जो उसमें प्रोग्राम आप फीड करोगे, अगर आप बोलोगे 2 + 2 22
तो वो 2+2 22 ही बताएगा, 4+4 44 बताएगा, उसको नहीं मालूम कि 2+2 4 होता है। It depends upon the programming. Clear? So what kind of program we are going to feed, or what way we are going to develop the program on the basis of that it works. That is the limitation. It has no capacity to think at its own. नहीं ये तो गलत दे रहा है, ये गलत प्रोग्रामिंग करा रही है, मुझे ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए. So it accepts as it is. तो जैसे आप उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, जैसे आप उसके प्रोग्राम डेवलप करेंगे, वो उसके बेसिस पे ही काम करेगा. Now then, next, security risk. And security risk, how it happens? So AI system they become target for cyber attacks. So now you see many people, they are using the different platforms and the different apps. And now you know this a few years back we came to know that the information of Indian Airlines, that when the Indian Airlines was not privatized, that was still running under the government, handling our government leadership. Then the AI information, how many people are passengers, they are booking tickets, they are sharing the age, then their location and many other relevant information. So this information got leaked. Here. Now similarly, today the Aadhaar card. So all of us, I think almost 80% people are more than 80-90% people are having Aadhaar card. So Aadhaar card, we are having the very sensitive information. हमारा वहाँ की जो है आईरिस की वहाँ के जो है इमेजेस है, हमारे वहाँ के जो है फिंगरप्रिंट है, हमारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है. If it gets leaked, then I can be robbed at any time virtually. So that leakage is possible with this AI. That is the limitation. Then the ethical concern. AI raises ethical issues such as privacy violation, surveillance, bias, decision making, and especially when used in like areas hiring. Now I would like to explain this thing. So now the recruitment which is done with the help of AI. So as I have already told you, the way or the kind of information or programming we feed or we develop on the basis of that is start working. So garbage in, garbage out. If we have developed the flawed program or the biased programming, so definitely the recruitment and the different activities that will be done by the AI or the AI-led machinery, so definitely that will be biased. तो AI में जैसी हम इंफॉर्मेशन फीड करेंगे, जैसी इंस्ट्रक्शंस देंगे, जैसे प्रोग्राम डेवलप करेंगे, और मैं वहाँ पे एक चीज बताना चाहूँगा that is very much relevant. So now in the science field, especially in India, there is a dominance of male. हम मेल का डोमिनेशन है. आई एम नॉट सेइंग दैट फीमेल्स आर नॉट देयर. तो साइंस में मेल का डोमिनेशन है. तो जो हमारा जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है, जो हमारा जो डोमिनेटिंग जो थिंकिंग है, जो माइंडसेट है, दैट इज आल्सो अफेक्टिंग द प्रोग्राम डेवलपमेंट. तो उससे हमारी जो महिलाएं हैं, जो हमारे जो समाज के लोग हैं, उनमें एक तरीके का जो है अननोइंगली, अनइंटेंशनली इस टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हैपनिंग. सो फॉर दैट वी विल टेल यू दैट there should be the equal participation of male and female, so that this gender bias and gender gap can be reduced. Now next, that is the over reliance on technology. So it is completely based on technology. Then the limited real world understanding. It has a very limited real world understanding. Vulnerability to errors. Now as we know that there is a least possibility or very minimal possibility of error. But as and when, if it happens, that blunder risk can happen, and that is irreparable, or we can say the out of control or out of management, that can't be managed. So that may happen. So that is very much vulnerable to error. Then difficulty in explaining decision. It can't explain the decision. It just tell you what should be done or what kind of action should be taken, but why. That is exact explanation as we human beings can give you logically and psychologically and from the different perspective, social perspective. That's not possible to AI. Then the implementation challenges. There are technical, financial and the organizational barriers in the implementation. Now the legal and regulatory issues. So now the way this AI is being developed or the advancement is happening, the pace at which, so the legal and regulatory is surpassing the pace of development. तो हमारे नियम और कानून जिस रेट से हमारी पार्लियामेंट नियम कानून कायदे बना रही है, उससे कहीं ज़्यादा स्पीड से हमारे AI में डेवलपमेंट हो रहा है. तो इसलिए जो हमारा जो नियम है, जो हमारा कानून है हमारे देश का, वो AI को रेगुलेट करने में इनकैपेबल हो रहा है. क्योंकि जैसे डिफरेंट चेंजेस डेवलपमेंट हो रहा है, उस रेट से हमारे वहाँ पे कानून में चेंजेस नहीं हो पा रहे हैं. क्योंकि हम एक लंबे समय के बाद किसी, जब तक कोई समस्या होती नहीं, बार बार रिपीट नहीं करती है, तब तक हम उसको डिस्कस नहीं करते और कोई इसकी समस्या का समाधान नहीं करते. सो दैट इज द प्रॉब्लम.
Then the limited self-learning capacity, I have already told you that it works only on the basis of data. It has not its own thinking capacity that is happening in case of human beings, and that's why we human beings are unique. Next, that is the potential misuse, and potential misuse is it can be used for the different things that we have already discussed under the advantage section, and now for the rest of activities like जैसे अभी बोला कि आपको अटैक करना है, तो ड्रोन के थ्रू अटैक या आपके घर में मुझे अकाउंट को हैक करना है या मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट को हैक करना है, सो इट हैज वेरी लीगल कंसीक्वेंसेस कि अगर इंडिया का अगर आरबीआई की अगर वेबसाइट को अगर ब्लॉक करते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट को अगर हम ब्लॉक करते, तो यहाँ पे उसके कितने रिपरकशन हमारी पूरी इकोनॉमी ठप हो जाएगी पूरे मूवमेंट के लिए. सो दैट इज द पोटेंशियल, इट हैज वेरी ह्यूज पोटेंशियल फॉर द मिसयूज, सो दैट वी नीड टू रेगुलेट आल्सो. Now we come to the implications of artificial intelligence on social change. How it is going to impact and what kind of changes it is creating, or it is on the way to develop or emerge in the field of the society. So first, that is the transformation of employment structure. So employment structure, as I have already told you that lots of activities are routine activities, repetitive activities, and the formula based are the, we can say, the particular activities that are done in a sequential manner that will be overtaken by the AI. And this way, the majority of the tasks, means the skilled activities, would be done by the human beings, and the advanced activities where the AI is not visible are not possible. तो जहाँ पे AI नहीं कर पाएगा वहाँ पे ही होगा. तो इससे हमारी एक बहुत बड़ी जो है बेरोजगारी की समस्या आने वाली है. लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे दूँ, डरने की जरूरत नहीं है. जब हमारे बीच में जब कंप्यूटर आया था उस समय भी हमारे बीच में ऐसी ही समस्याएं थी कि हमारे जॉब को खा जाएगा, हमारे जॉब को खा जाएगा, हम सब बेरोजगार हो जाएंगे. आज धरती दुनिया बिल्कुल एज इट इज है और जॉब पहले से ज्यादा बढ़ी है. मैंने एक स्टडी कहा था, मुझे उसका रेफरेंस याद नहीं है, कि बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम द जॉब्स हैव बीन इंक्रीज्ड मोर देन 50%. यानी जो हमारी आजादी से पहले या कंप्यूटर आने से पहले जो हमारे यहाँ जो जॉब थी या 2000 या पहले 90 से पहले जो जॉब की जो संख्या थी उससे 50% से ज्यादा जॉब बढ़े. तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, हमारे बहुत सारे जॉब को ये खाएगा, लेकिन वहीं पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होगी. ओके, so what kind of opportunity will be created? Like data science, robotics, and AI engineering. These are the areas, but they are science based. Next, rise of the digital economy, and digital economy will boom as it is the digital means AI means technology ICT based. Then the improvement in healthcare services that I have told you that how it is going to bring a drastic change in the healthcare sector. So that is going to happen, and that has started happening, but not in a very good pace. But gradually it is day by day happening and coming before us in different. Then changes in the education system, जो आज हम different platform पे जो हम लर्निंग कर रहे हैं, चाहे वो स्वयं हो या और भी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो या हम लोग डिफरेंट स्काइप वगैरह के थ्रू हम लोग जो मीटिंग्स वगैरह कर रहे हैं, जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो अक्रॉस द वर्ल्ड जो इंटरनेशनल मीटिंग्स वगैरह अपलोड हो रही है, सो दैट इज थ्रू द AI. There is a role of AI. Next, there is the growth of smart cities, and growth of smart cities. We can understand the smart cities, growth of smart cities that can take the example of airport. तो हमारा जो एयरपोर्ट है, अगर उसको हम एक सिटी मान लें, so that is a smart city. Clear? Even Indian airports, they are not absolutely 100% smart, but they are smart to a great extent. तो जहाँ पे आप सेंसर बेस्ड आप जाते हैं पानी या वहाँ पे आप लिक्विड के लिए या आप ड्राई के लिए जाते हैं, you need not to push. इससे कहीं हमारे बहुत सारे एयरपोर्ट वहाँ पे कन्वर्टर में भी आपको जाने आने टाइम को ऑन ही करना पड़ता है, पर सेंसर बेस्ड. तो जो एयरपोर्ट पे जो हमें एक स्मार्ट सिस्टम जो देखते हैं, उस तरीके से हमारे सिटी स्मार्ट सिटी का डेवलपमेंट दैट विल बी पॉसिबल होता है AI. तो हमारी स्मार्ट सिटी का जो डेवलपमेंट है, हमारे स्मार्ट सिटी का वो सपना भी जो है AI से पूरा होगा. Next, detection in human errors, that we have already told you that it is data driven based. It is not based on hunch or guesses or imagination or intuition. ये डेटा के ऊपर काम करता है और डेटा आपने जितना अच्छा दिया उसके बेसिस पे उतना ही एक्यूरेट डिसीजन देगा, तो उसमें एरर के चांसेस नहीं होंगे. दैट नॉर्मली हैपेंस इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. Then extension of digital communication would be extensively increased. Then the privacy and data security concerns. So that I have already told you that our privacy, that we have given the example of Aadhaar,
Okay, and different many times even some people 20 times 30 times they are using the QR code. तो जब भी आप QR code जब आप स्कैन करते हैं, आप जब उसको पेमेंट करते हैं, so many vital information is going to the service provider. क्लियर? तो मैं ये नहीं बोलूँगा आपसे कि आप मत करिए QR code, लेकिन जितना हो सके लिमिटेड करिए और जहाँ नहीं मिल पाए उसी में करिए, जिससे आपकी प्राइवेसी पूरी मेंटेन रहे. क्लियर? Next, social inequality and digital divide. So social inequality that you can see. The unskilled and semi-skilled people, they are going to be out of job, and the people who are having very good expertise in the IT, in the what we can say the science and the AI and robotics, they will have better opportunity. तो हमारा जो बहुत ही एडवांस तबका है, जो बहुत उच्च कोटि की जो साइंस की जो पढ़ाई किया वो विज्ञान में भी, जो कंप्यूटर साइंस की रोबोटिक्स में AI इंजीनियरिंग में जो पढ़ा हुआ है, उनके लिए तो अच्छे अवसर है. लेकिन वहीं पे जो हमारा जो गरीब जो मजदूर तबका है, जो अनपढ़ है, नहीं पढ़ा लिखा है, उसको कानून के बारे में नहीं पता है, वो लोग जॉब से बाहर हो जाएंगे. तो इस तरीके से हमारे समाज में एक बहुत क्लियर कट जो है डिस्पैरिटी, असमानता और व्यापक होने वाली है. ऐसा नहीं कि असमानता आज नहीं है, असमानता आज भी है, लेकिन ये असमानता और भी ज्यादा जो है विजुअल होने जा रही है. नाउ नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस ऑन सोशल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन फ्लो. आज की डेट में आप देखते हैं कई बार कि हमारे धर्मेंद्र जी जो है, धर्मेंद्र का जिंदा थे और न्यूज चल गई जो है धर्मेंद्र की बढ़ गए, और धर्मेंद्र जी खुद देख रहे हैं कि हमारे मरने की न्यूज सोशल मीडिया पे आ रही है. यू माइट हैव एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ थिंग. ओके, सो देयर इज आल्सो हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस एआई. तो ये उसका मिसयूज है, ये उसका रॉन्ग implications है. इट कैन बी यूज्ड फॉर द बेटर पर्पस, फॉर द गुड पर्पस, नॉट फॉर द नेगेटिव थिंग. तो इसी तरीके से रूमर्स वगैरह के हमारे प्रधानमंत्री आने वाले हैं, ऐसा होने वाला है, हमारे देश की इकोनॉमी डूबने वाली है, डोनाल्ड ट्रंप के डिसीजन से इकोनॉमी डूब जाएगी और हमें तो चाइना ले लेगा, हमें तो अमेरिका हमारे ऊपर रूल करने लेगा. सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स दैट हैज बीन अनड्यूली स्प्रेड थ्रू द सोशल मीडिया. सो दैट इज आल्सो हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ दिस एआई. Now then, the growth of artificial creativity. Definitely when AI is going to expand, so definitely the creativity led by AI, that would definitely increase. Then the development of autonomous system is rate of automation. जो स्वचालित, जो खुद से जो काम होने वाला अपने आप, यानी आप बैठे हुए हैं और काम हो रहा है, ये आपका जो है लग रहा है कि उसको यहाँ लोग बहुत ठंडे हो गए हैं, तो AI जो गर्म हो गए उनके पास ये कूलर चला जाएगा. तो ये ऑटोमेशन, यहाँ पे जो दो चार लोग बैठे हुए हैं या कोई इसको सही कर रहे हैं, उन लोगों की जरूरत नहीं होगी, वो खुद आएगा जैसे होगा वो वहाँ पे, या आएगा नहीं, वो अपने आप सिस्टम को कनेक्ट करके और वो ऑन कर देगा. बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी हमें आपको. ओके, नेक्स्ट, दैट इज द इम्पैक्ट ऑन एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज. So now the growing role of AI raises ethical questions about the accountability, fairness. Now the thing is that when something bad is happening because of the AI, it is very ridiculous. It's not possible to identify or question who is responsible. जो सर्विस प्रोवाइडर है वो रिस्पॉन्सिबल है, या जो AI है वो रिस्पॉन्सिबल है, या जो प्रोग्राम को डेवलप किया वो रिस्पॉन्सिबल है. तो आप पिनपॉइंट कर ही नहीं सकते कि प्रॉब्लम हो कहाँ से रही है, बट प्रॉब्लम इज हैपनिंग. सो दैट इज द ethical issues and moral values. Now, strengthening of financial system that we have discussed, then improvement in agricultural productivity. So, with the precision farming, then the weather prediction, the productivity of agriculture can be improved. Now, the next, there is the improvement, transformation of consumer behavior. As I have already told you that when anything we start using, suppose हम बार-बार हम ड्राई फ्रूट्स खरीद रहे हैं, तो वो जो हमें अमेजॉन और फ्लिपकार्ट वाला होता है वो बताता है ड्राई फ्रूट पे ये वाला ऑफर आ गया, इससे परसेंट आ गया, ये वाला परचेज खरीद लीजिए. सो नाउ हियर द वे वी आर परचेजिंग आवर बिहेवियर, आवर परचेजिंग बिहेवियर, दैट इज बीइंग modified, or that is being changed by the AI, that is influencing our buying behavior. Okay, or the buying psychology. Now next, that is the increased surveillance capability, and now that's a very debatable, but it is fact. We are living in the age of surveillance. आप जब भी कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं आप, तो आधार इज मस्ट, योर आधार लिंक बैंक अकाउंट इज मस्ट. So now everything, every information is going to the income tax department and different departments. And sooner or later, if something sensitive happening at your end, so definitely the income tax department, even जो बहुत सारे पहले जो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में समोसा बेचने वाले या कुछ बेचने वाले जो लाखों करोड़ों रुपए जो आप खुद से कमा लेते थे, वो आज की डेट में अगर QR कोड से हो रहा है, तो इनकम टैक्स रेट इज हैपनिंग. So that is the surveillance, example of surveillance. So now that's why the very small retailers, they are avoiding
the QR code or this different app-based payment. They are interested in taking the payment, and that's why corruption happening in cash. Okay, तो जो भी corruption या appointment वगैरह जो भी पैसे देके वहाँ पे कैश पे लेन देन होता है, मोबाइल से बैंकिंग से नहीं लेते, तो it has its own written record. So now, acceleration of scientific research. So that is possible to analyze the large-scale data, speeding of discovery in medicine and climate science and engineering. Then support for people with disability. That is a very good thing. So now you might become aware of this kind of information कि एक फैमिली था जिसके एक बच्चे या दो बच्चे थे, दोनों अमेरिका में चले गए और माँ जो है या पिता उसके एक रूम में रहते थे या दूसरी जगह रहते थे। 6 महीने बाद जब वो सड़ गए, जब वो मर गए, तब उनकी लाशें जब बैग स्मेल करने लगी, तब लोगों को पता चला। So now here the people who are capable, who are economically rich and sound, they can have the AI robot, और जो रोबोट उनकी केयर करेगा, उनकी देखभाल करेगा, उनको जो भी कितनी भी क्रिटिकल प्रॉब्लम हो, और दैट विल मेक कॉल टू देयर फैमिली मेंबर्स कि उनकी प्रॉब्लम ये है ऐसे। और आप आज भी देख रहे होंगे हम लोग वेरिएबल्स जो यूज कर रहे हैं, आज ये वेरिएबल वॉचेस जो है दैट इज AI बेस्ड। आपका कितना प्रेशर है, कितना आपका ब्लड है, कितना शुगर है, कितना आपका प्रेशर चल रहा है, इवन समटाइम्स इट इज क्रिएटिंग मींस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आल्सो कि आप अन्य तस्वीर को बार-बार देख करके आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं। ठीक है, उसका एक साइड इफेक्ट है, बट एट द सेम टाइम इट इज टेलिंग यू व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली राइट नाउ। तो ये उसका दूसरा बेहतर यूज है। और जो आप परेशान हो रहे हैं, इस दिन में आपको लग रहा है आंखों में बीमारी हो रही है और बार-बार डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो उसका नेगेटिव साइड इफेक्ट है उसका। ओके, सो नेक्स्ट दैट इज एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड सस्टेनेबिलिटी, रीशेपिंग ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन। सो नाउ अर्लियर अगर हम देखें शुरुआत कि जब हमारे पास फीचर फोन और बेसिक फोन होता था, हम लोग एक एक नंबर दबाते थे। अपनी बात को हमारे सर ने भी कहा, हमारे कात्याराम सर ने भी कहा और मैडम ने भी इस चीज को कहा, और उसके पहले जो हमारे सर आए थे वो चले गए, तो उन लोगों ने बताया कि हमें अपने नंबर याद नहीं है। तो जब हम नंबर को दबाते थे एक एक नंबर को, तो इवन हमारे पास 20-25 नंबर याद रहते थे। आज लोगों को अपने खुद के नंबर याद नहीं है। ठीक है, ये समस्याएं जो पैदा हो रही थी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जो ह्यूमन बीइंग का मशीन के साथ इंटरेक्शन बढ़ गया है, और ये दिन पे दिन इंटरेक्शन और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपको कंप्यूटर को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। आप अपने अगर AI पे CPU है मेंटेन का कंप्यूटर, आपको बोलना नहीं, आप सिर्फ आवाज से बोलिए ये वाली फाइल खोलो, तो वो फाइल खोल देगा। आपको पता नहीं वो फाइल कहाँ है, उसमें कितना डेटा है, कौन कौन सी और फाइल है, कि जब आप मैन्युअली खोलते थे तो आपको पता चलता था। So now this way it is reducing your retention capacity, your memory capacity, and your creativity and all other good things that we human beings normally have. Now the AI and social inequality. Now very little thing we have already discussed in the social change dimension, but now just few things. Widening the digital divide. तो डिजिटल डिवाइड तो वैसे आज भी है कि हमारे पास एक तबका है जिसके पास डिजिटल फोन है, और दूसरा तबका है जिसके पास आज एक फीचर फोन भी नहीं है या उसके पास नॉर्मल फोन है। तो यूबी सोसाइटी एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस और एक टेक्नोलॉजी बैकवर्ड, दो हिस्से में सोसाइटी डिवाइड हो गई है। अभी जो आने वाला टाइम में जो हमारा जो डिस्पैरिटी होने वाला है, थोड़ा एडवांस लेवल का डिस्पैरिटी होने वाला है। वहाँ पे एक होगा एडवांस मीन्स टेक्निकली मीन्स AI एडवांस एंड AI बैकवर्ड। तो वहाँ पे कुछ लोगों के पास जिनके पास AI टेक्नोलॉजी है, वो उस AI टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज करके वो डॉक्टर करेंगे, ग्रो करेंगे, और जिनके पास नहीं है वो पिछड़े रहेंगे या उनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज या उसको बेनिफिट नहीं होगा। जो वहीं पे दूसरा सेक्शन जो उससे बहुत अच्छे से उसके पास है वो उसको एंजॉय कर रहा है, अवेल कर रहा है। देन अर्बन रूरल डिस्पैरिटी। तो आपको पता है कि जो भी कोई नई टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी आता है वो पहले अर्बन एरियाज में आती है। अब अर्बन एरियाज में क्यों आती है? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज होते हैं, बहुत सारे वहाँ पे जो है इन्वेस्टर्स होते हैं, और वहाँ पे रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होता है। वहाँ पे सोशल ऑब्लिगेशन या वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे पैसा जनरेट होता रहता है। तो इस वजह से जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ पे AI का आपको एडवांस यूज दिखेगा। दैट यू कैन सी द वे or the rate at which the AI being used in Mumbai, and if you see the other developments, Gadchiroli या जो और भी हमारे जो बैकवर्ड रीजन है, इवन हम अपने इसको भी कह सकते हैं नो इट इज नॉट सो मच बैकवर्ड, बट अगर हम मुंबई से कंपेयर करें तो मुंबई से हमारा भीड़ और जो भी चाहे वो संभाजीनगर है उतना तो नहीं है जितना मुंबई है। तो मेट्रो सिटीज में AI का ज़्यादा यूज होने से वो ज़्यादा एडवांस होंगे, और हमारी जो विलेज एरिया है, जो अनडेवलप्ड एरियाज है, वहाँ पे AI का इतना यूज नहीं होगा। तो और ये गैप हमारे जो है सिटी और रूरल एरिया के बीच में ये गैप और ज़्यादा विजुअल होगा, बढ़ेगा। देन स्किल बेस्ड इनइक्वालिटी। स्किल बेस्ड इनइक्वालिटी मीन्स
एक ऐसे लोग जिनके पास स्किल नहीं है, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लोग, और वो लोग पर्टिकुलरली जिनके पास एआई का कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है। अभी तक तो उन लोगों ने सबने जी लिया जिनके पास कंप्यूटर का नॉलेज नहीं था, लेकिन जो एआई का जमाना जो हमारे बीच में धीरे धीरे हमारे बीच में आ रहा है, अगर एआई की अंडरस्टैंडिंग हमारे पास नहीं होगी तो हमारे लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वहां पे सोसाइटी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक एआई से युक्त और एक एआई से मुक्त। तो एआई से जो मुक्त होगी उसके लिए डेवलपमेंट या समाज के साथ पैरेलल स्पेस में डेवलप करना, आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देन अनइक्वल एक्सेस टू एआई एजुकेशन, और जो एआई एजुकेशन है उसकी एक्सेस भी सेम थिंग हैपन होगा कि हमारे फील्ड में जो है या जो हमारे केवराय तो जो कॉलेज है यहाँ पे जो हमारा लिमिटेड मैनेजमेंट के बाद फंड होगा या जितना हमारा गवर्नमेंट फंड देगी उसके बेस पे ही हमारा कॉलेज, हमारे प्रिंसिपल साहब जो है एआई से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है उसको ला पाएंगे और स्टूडेंट बेनिफिट करेंगे। लेकिन वहीं पे अगर हम मुंबई की बात करें, एसएनडीटी और भी अदर जो यूनिवर्सिटीज है या उनको मुंबई यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे वो सिटी में वहाँ पे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, तो जो वहाँ पे पढ़ रहे स्टूडेंट हैं उसके बीच में ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी, वो उससे ज़्यादा प्रॉपर ग्रो करेंगे। लेकिन हमारे फील्ड के संभाजी नगर के और गढ़चिरौली के और भी जो अन्य जो एरियाज है वहाँ पे इतना बेनिफिट नहीं होगा। तो एआई के एक्सेस में भी एक डिस्पैरिटी और आएगी। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजिकली बहुत सारे लोग जिनके पास टेक्नोलॉजिकल स्किल नहीं है वो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, आउट ऑफ जॉब हो जाएंगे, और जो टेक्निकली स्किल है उनके लिए ही जॉब पाना आसान होगा और उनके लिए जॉब बहुत सारी अवेलेबल होगी। तो ये एक टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी हमारे बीच में बढ़ने वाला है। अभी तक अनएम्प्लॉयमेंट था कि हमें जॉब नहीं मिल रहा है, हमको कमाई के लिए कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। अभी ये होगा कि आपको टेक्नोलॉजी नहीं, इसलिए आपको जॉब नहीं मिल सकती। तो टेक्नोलॉजी का अनएम्प्लॉयमेंट। देन रीजनल डेवलपमेंट इम्बैलेंस। तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जहाँ पे जो एडवांस एरियाज है, जो अर्बन एरियाज है, सबअर्बन है, वहाँ पे ज़्यादा एआई का यूज होगा, वो ज़्यादा डेवलप होंगे, और जो बैकवर्ड एरियाज हैं या जो बहुत इकोनॉमिकल रिस्क नहीं है, साउंड नहीं है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी का उतना यूज नहीं होगा, इससे वहाँ पे जो है डेवलपमेंट का रेट कम होगा। देन कॉर्पोरेट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। तो जब सिटीज में, अर्बन एरिया में जब वहाँ पे एआई का यूज होगा तो सारे के सारे पैसे जो कमाई के जो जरिए हैं, जो साधन हैं, जो नौकरियां हैं, वो वहाँ पे आएंगी। तो पैसे जो है वो अर्बन सिटीज में ही कॉन्सेंट्रेट होगा। ऐसा नहीं कि कुछ बहुत स्पेशल होने वाला है, आज भी वही हो रहा है, लेकिन उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी और ज़्यादा वो वाइडर हो जाएगा। जो अभी पता चला कि पूरे अगर मुंबई में जो है पूरे महाराष्ट्र की अगर अभी 100 रुपए की हो रही है तो मुंबई उसमें से 50 रुपए कमा रहा है। तो एआई की डेट में क्या होगा, जो 50 कमाएगा वहाँ पे 80 कमाएगा, बाकी महाराष्ट्र 20 रुपए कमाएंगे। इस तरीके का एक डिस्पैरिटी, एक सिनेरियो हमारे बीच में आने की संभावना है। होगा नहीं होगा उससे हम लोग देखेंगे। देन बायस इन एआई एल्गोरिथम। जैसे कि हमने बोला कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, जैसा हम डेटा फीड करेंगे वैसा ही एआई रिस्पॉन्ड करेगा। अगर एआई में हम बायस प्रोग्रामिंग करेंगे तो वो बायस बिहेव करेगा, बायस रिस्पॉन्सेस देगा, उसके जो रिस्पॉन्सेस होंगे, जो डीलिंग होगी वो बायस होगा। अगर हम उसे अनबायस देंगे या उसे हम एक ट्रांसपेरेंट, एक बिल्कुल जस्टिफाइड वे में देंगे तो वो बिल्कुल एक न्यूट्रल वे में काम करेगा, सबको इक्वल लेकर के काम करेगा। तो ये एआई के थ्रू जो है एआई का जो बायसनेस भी दैट इज गोइंग टू इंक्रीज। देन द लैंग्वेज बैरियर्स इन एआई टूल। नाउ वी सी, अगर आप स्मार्ट फोन की बात करें, स्मार्ट फोन में मैक्सिमम चीजें वो इंग्लिश में होती है। तो हमारे जो लोग जो इंग्लिश में नहीं है, जो रीजनल लैंग्वेज में ही कॉम्पिटेंट हो, वो चाहे साउथ इंडिया हो, चाहे वो हमारा महाराष्ट्र हो या चाहे सेंट्रल इंडिया हो, तो जहाँ पे हिंदी में जानने वाले लोग हैं वो ऑटोमेटिक एआई से दूर हो जाएंगे, क्योंकि एआई हिंदी में, इवन की ये प्रॉब्लम एआई से दूर भी करने की बात हो रही है, लेकिन एआई में इंग्लिश का डोमिनेंस है, वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये लैंग्वेज बैरियर भी इसकी एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे बीच में बढ़ने वाली है। देन ऑटोमेशन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एक्टिविटी होगी, आप लोग रील में तमाम देख रहे होंगे कि चाइना में खेती कैसे हो रही है और जापान में कैसे हो रही है, सारी मशीनों से। तो वहाँ पे जो हमारा एग्रीकल्चर रिच कंट्री है, जहाँ पे आज भी 2/3 कंट्री हमारी जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इंगेज है। अगर जो बड़े बड़े जो किसान हैं, यानी किसान क्या हम उसको कहें कॉर्पोरेट फार्मर, तो वो लोग अगर मशीनों से करने लगेंगे तो हमारा बहुत ही एक लार्ज शेयर जो पॉपुलेशन का है वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगा बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन इन एग्रीकल्चर। देन जेंडर इनइक्वालिटी इन टेक्नोलॉजी। अब मैंने अभी आप कुछ देर पहले कहा कि साइंस में जो डोमिनेंस है वो मेल का ज्यादा है आज की डेट में इंडिया में जो है। तो वो जो साइंस में जो रोल है, सिमिलरली एआई दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ अ ब्रांच ऑफ साइंस। तो एआई में जो चीजें होंगी, जो प्रोग्रामिंग होगा, वो कहीं ना कहीं वो ह्यूमन को मींस मेल की डोमिनेशन है, उसकी थिंकिंग या उसकी पैट्रियार्कल माइंडसेट है, डिफरेंट अदर नेगेटिव थिंग्स दैट आर नॉट एट पार विद देयर काउंटर पार्ट विद फीमेल। तो वहां पे वो डिस्पैरिटी उसमें बढ़ने के चांसेस हैं।
देन कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, तो जो गरीब जो राज्य हैं, जो गरीब मतलब जो इकोनॉमिकली वीक है जो इंस्टीट्यूशन, वो एआई टेक्नोलॉजी को नहीं अडॉप्ट कर पाएंगे। जो रिच है, जैसा मैंने मुंबई और बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, वो लोग अच्छे से अडॉप्ट कर पाएंगे। इनइक्वालिटी इन रिसर्च एंड इनोवेशन, सिमिलरली जो स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है, जिसके पास फंडिंग ज्यादा है, वो अच्छे से एआई के बेस पे रिसर्च और इनोवेशन करेंगे, लेकिन दूसरे इंस्टीट्यूशन रिसर्च और इनोवेशन से काफी दूर हो जाएंगे क्योंकि उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। Then unequal access to information. With the help of AI, the organizations and the institutions that have equal access to AI, they can have update and timely information. On the other hand, the institutions which are lacking this facility, they will have delayed information. तो जो information आज हमारे पास आ रही है, वो जिनके पास नहीं, उनके पास एक हफ्ते बाद आएगी। And you know today information is power. तो आज AI की एज में information ही power है। तो अगर information ही नहीं होगी, तो फिर समस्या बढ़ जाएगी। Then the limited AI infrastructure in rural areas. तो रूरल एरियाज में तो रूरल एरियाज में जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी जो है बहुत कम होगा। इसमें जो है उसकी लिमिटेशंस आ जाएगी, जो कम हो जाएंगे, वो अभी भी बहुत नहीं है, लेकिन शहरों के आगे गैप बढ़ जाएगा। देन डिपेंडेंस ऑन द फॉरेन टेक्नोलॉजी, हमारी फॉरेन टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंस बढ़ जाएगी। रिस्क ऑफ लॉन्ग टर्म सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, तो जो हमारा जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मैंने पहले ही बताया कि जॉब जो ऑटोमेशन बेस्ड हो जाएगी, तो जो वहाँ पे जो अनस्किल्ड है और जो सेमी स्किल्ड है, वो लोग काफी हद तक जॉब से बाहर हो जाएंगे, या उनके पास बहुत अच्छी जॉब नहीं होगी, उनका एक्सप्लॉयटेशन होगा और बहुत उनको लोअर लेवल की है उनको जॉब मिलेगा, तो कम पैसे में ज्यादा देर तक काम करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम जो लोग हाईली स्किल्ड है, जो एडवांस जिनके पास कंप्यूटर का, एआई का, रोबोटिक्स का जो नॉलेज है, उनको पैसा ज्यादा मिलेगा। तो समाज में एक गैप पड़ेगा, वहाँ पे बहुत ज्यादा एक हाईली रिच, सबका अल्ट्रा रिच होगा और एक बहुत ज्यादा जो है अल्ट्रा पुअर सेक्शन होगा। नाउ वी कम टू द last section, that is the future of human civilization. So human civilization is not very much different. Transformation of work and employment, कि हमारे वर्क एआई में बेस्ड हो जाएंगे, टेक्नोलॉजी में बेस्ड हो जाएंगे, मैनुअल वर्क कम हो जाएंगे। क्रिएशन ऑफ न्यू इंडस्ट्री, एआई बेस्ड रोबोटिक्स, ऑटोनोमस सिस्टम, एआई रिसर्च, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन, ये सेक्टर ग्रो करेंगे और बाकी जो मैनुअल जो वर्क वाले हैं वो धीरे धीरे वो डिक्लाइन होने लगेंगे। ये हमारा फ्यूचर आने वाला जो होने वाला है। एनहेंसमेंट ऑफ ह्यूमन प्रोडक्टिविटी, ह्यूमन बहुत ज़्यादा काम कर पाएगा, बहुत ज़्यादा वो अपनी प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन दे पाएगा, काम कर पाएगा, एफिशिएंसी उसकी बढ़ जाएगी। नाउ रिवोल्यूशन इन हेल्थ केयर, हाउ रिवोल्यूशन विल हैपन, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इंक्रीज इन ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो ये जो एआई के थ्रू जो ड्रग डिस्कवरी होगा, जो डायग्नोसिस होगा, जो एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीज होंगे, तो जो लोग पहले आपने देखा होगा कि 30-40 ईयर्स की एज में बहुत सारी बीमारियों से लोग मर जाते थे, आज हमारी 60-70 हो गए, आने वाले दिन में हो सकता है कि 90 और 80-90-100 में लोग जिएंगे। So that would be possible through AI. Then the transformation of education system, then growth of smart cities, then the development of autonomous transportation. जल्दी ही हमें जो है बगैर ड्राइवर की गाड़ियाँ देखने को मिलेगी, जो भी हम सिर्फ रील में देख रहे हैं, हमारे बीच में भी दौड़ती नजर आएगी। डेवलपमेंट ऑफ ऑटोनोमस, देन एक्सेलरेशन ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी, बहुत तेजी से साइंटिफिक डिस्कवरी होगी, क्योंकि जो मैनुअल वे में जो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वो टाइम कम हो जाएगा, तो डिस्कवरी की रेट बढ़ जाएगी। Then expansion of human machine collaboration, जो ह्यूमन और मशीन का जो कोलैबोरेशन जो इंटरेक्शन है, उसका रेट बढ़ जाएगा हमारी टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ज़्यादा। Then the transformation of agriculture, एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजी से हो जाएगा, एआई से होगा। Then better environment monitoring, हम अपने एनवायरनमेंट को और अच्छे से मॉनिटर कर पाएंगे, पहले से और बेहतर। Then the growth of artificial creativity, that's nothing new. Then improved disaster prediction and management, reduction of human error. Then the support for aging population, that I have already told you कि जो old age लोग हैं और जो disabled लोग हैं, वो AI के थ्रू, जिनके पास कोई देखने वाला केयर करने वाला नहीं है, वो AI के थ्रू अपनी अच्छे से केयर कर सकते हैं और वो जो सुविधाएं या जो डॉक्टर की जो कंसल्टेशन है, वो AI के थ्रू वो पा पाएंगे। तो ये finally we come to the last that is the one more point, the areas which are to be severely affected. अब वो कौन से एरिया उसमें डिस्कस नहीं करना, जस्ट एरिया में बता दूं आपको, ये लास्ट पॉइंट है। कौन से एरियाज वो सीवियरली अफेक्ट होने वाले। So as I have already told you that the areas where the repetitive things and the routine activities and the sequential are the formula based things or activities are happening, those sectors are those activities will be completely taken over by the AI. वो एआई पूरे अपने गिरफ्त में ले लेगा और वहां से जो लोग काम करने वाले हैं वो बिल्कुल जॉबलेस हो जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे
इसमें अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो आपको इंडस्ट्रियल में, इवन आपको चाइना में देखें या इंडिया में भी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, वहाँ आपको रोबोट काम करते हुए नजर आएंगे, जहाँ पे हजारों लोग देहात से और अदर स्टेट से जो आकर के काम करते हैं, वो लोग आपको बहुत कम हो जाएंगे, बिल्कुल लिमिटेड लोग होंगे, और बाकी सब काम वहाँ पे एआई कर रहा होगा, इंसानों की तरह एआई होगा वहाँ पे, और एआई भी 100 नहीं होगा, वो 1-2 एआई सबका काम करके खत्म कर देगा। देन कस्टमर सर्विस एंड कॉल सेंटर, ये अफेक्ट होने वाले हैं इससे जो है। देन ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक, जो ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक है ड्रोन के थ्रू, रोबोट के थ्रू, ये अफेक्ट होने वाला है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, रिटेल एंड ई कॉमर्स, डेटा एंट्री एंड क्लरिकल वर्क, ये डेटा एंट्री क्लरिकल वर्क जो करने वाले जो मुंशी लोग हैं, उनका जॉब तो बिल्कुल खतरे में है, ठीक है, ये बिल्कुल जाने वाला है एआई के थ्रू, जहां जिसने अडॉप्ट कर लिया वहां वो सारा काम एआई करेगा। देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, और हम कॉमर्स से आते हैं, तो हमारे कॉमर्स के जो लोग हैं जो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के काम कर रहे हैं, AI within few seconds can tell you that what are the good things and what are the bad things, whether you should invest your money in this particular company or not. But when you try to analyze at your own, that's not possible. और आप कभी भी 100% एनुअल अकाउंट को रिपोर्ट को आप नहीं पढ़ सकते, वो हमारी लिमिटेशन है, और अगर पढ़ भी ले तो समझ नहीं सकते हम, वो AI हमको शॉर्ट टाइम में कर देगा, तो यहाँ पे भी जॉब जाने वाली है। देन लीगल रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन, जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो लीगल रिसर्च है, वो वहाँ पे भी जो है ये जॉब की क्राइसिस होने वाली है। देन मीडिया एंड जर्नलिज्म, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे, जैसे अंजना और कश्यप जी और बहुत सारे लोग जो आ रहे हैं, वहाँ पे एआई जो है उसको टेक ओवर कर देगा। देन एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, सिक्योरिटी एंड सर्वेलांस, देन ट्रांसलेशन एंड लैंग्वेज सर्विसेज, ट्रैवल एंड टूरिज्म, जहाँ पे हमारे बीच में वो ऐप आ जाएगा चिल्ड्रन, और वो ऐप के थ्रू तो जहाँ पे हमें जो है 40 लाइक स्टोरी गाइड जो ट्रैवल एजेंट जो हमको बताता है, वहाँ पे एआई हमारे साथ होगा, और वो हमें बताएगा कि यहाँ की क्या विशेषता है, यहाँ पे क्या है, तो कहाँ जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए। तो ऑल दिस थिंग्स विल बी गाइडेड बाय दिस रोबोटिक एआई रोबोटिक ट्रैवल एजेंट दैट इज लेड बाय द एआई। Now then the warehousing and supply chain, graphic design and content creation, software testing and basic programming, stock market trading, then document processing, legal compliances, telecommunication operation, entertainment. Now then last, the areas where the human use that will remain. So that is the ethical and moral decision making. Then the leadership and vision, हमारे भारत में अगर कोई भी मूवमेंट अन्ना साहब को याद करिए आप जो है, ठीक है, तो अन्ना साहब ने जो मूवमेंट किया, वो अन्ना जैसा अगर कोई एआई अगर हमारे बीच में आ जाए, तो वो ऐसा मूवमेंट दिल्ली में जाके नहीं करा सकता है। तो उसके लिए हमारे बीच में से लीडर, जैसे वो हमारे जरांगे साहब, अभी उन्होंने जो एक मूवमेंट किया, तो वो ह्यूमन बीइंग को स्किल है वो मूवमेंट को क्रिएट करने की, तो मूवमेंट के जब बात आएगा तो वहाँ पे हमारे बीच से लोगों को ही उसके जो है लीड करना होगा, और तभी कोई मूवमेंट आएगा। तो मूवमेंट में इंसानों का रोल रहने वाला है, वो एआई नहीं ले पाएगा। देन लीडर्स इमोशनल सपोर्ट एंड काउंसलिंग, और जो चाइल्ड केयर की जो बात है, वहाँ पे जो माँ या जो पिता जो बच्चे को जो केयर करते हैं, वो एआई वो केयर नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे दूसरी चीज काउंसलिंग। देन द क्रिएटिव आर्ट एंड ओरिजिनल इनोवेशन, जो क्रिएटिव आर्ट ओरिजिनल इनोवेशन है, वो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रहेंगे ऐसे। देन कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशन एंड डिप्लोमेसी, तो जो इजराइल एंड अमेरिका नेट जो ईरान का वार हो रहा है, वहाँ पे एआई नेगोशिएशन नहीं करा पाएगा, जिसको बंद नहीं करा पाएगा, वहाँ हमारे जो व्लादिमीर पुतिन जी या हमारे मोदी जी जाकर के बीच में अगर नेगोशिएट करेंगे तभी होगा। देन दैट इज द टीचिंग विद इमोशनल एंगेजमेंट, वो हम टीचर एआई आएगा, वो कंटेंट बताते रहेगा, लेकिन किस स्टूडेंट को कैसा वो डिप्रेशन में है या वो कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जब तक एक पर्सनल कनेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए आप देखते हैं कि कई बार हम एआईसी प्रोग्राम या जो ऑनलाइन प्रोग्राम करते हैं, हम लोग जस्ट उसको क्यों ऑन करके और अपना काम करते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, और बस जाके हाजिर लगा देते हैं, लिंक ढूंढते हैं, अटेंडेंस का लिंक कब आएगा, और वो लिंक देकर के प्रोग्राम ओवर। तो वो चीजें जब हम सामने यहाँ पे लेक्चर कर रहे हैं, तो आप भले हो सकता है बहुत लोग दुखी भी होंगे कि काफी देर से मैं आपको परेशान कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं आपके चेहरे को देख करके मैं रीड भी कर रहा हूँ मैं, लेकिन वहीं पे मैं ये समझता हूँ कि मेरी मॉरल ऑब्लिगेशन की मैं ये चीज़ों को पूरा करके जाऊँ, बता के जाऊँ आपको। तो मैं एक तरह से शायद ये बोला मैंने, तो आवाज़ का कुछ दर्द कम हुआ होगा, ये एआई के पास नहीं है, ये इंसान के पास ही है। ओके, नाउ देन ह्यूमन सेंट्रिक हेल्थ केयर, तो जो ह्यूमन सेंट्रिक जो डॉक्टर होता है वो केवल दवाएं नहीं देता है, वो आपको बता रहे ठीक हो जाएगा, आपको कुछ नहीं हुआ है, लेकिन एआई आएगा क्या बोलेगा, वो देखेगा और दवा देके जाएगा। आप वैसे ही आप जो टेरर रहेंगे, कल मर जाएंगे, परसों मर जाएंगे, इस तरह की सोच हो जाएगी। जब डॉक्टर आके जाता है, अरे आपको कुछ नहीं हुआ है, आप दवा चाहिए निकल सकती है, तो आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है, वो उसके कहते ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सो दैट इज द ह्यूमन सेंट्रिक हेल्थ केयर। तो डॉक्टर का रोल भी रहने वाला है
एआई और टेलीमेडिसिन इतना ज़्यादा रोल नहीं ले पाएगी, डॉक्टर की जॉब जिंदा रहेगी। देन द इंटरनेशनल एंड रिस्क टेकिंग वो भी इसमें, एंड देन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड अनसर्टेन सिचुएशन, तो अनसर्टेन सिचुएशन में जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है दैट कैन बी डन ओनली बाय द ह्यूमन बीइंग, नॉट बाय द रोबोट्स। देन द आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस एंड एक्सप्रेशन, देन द कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड मीडिएशन दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, देन एथिकल गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, जो एथिकल गवर्नेंस और पब्लिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन है दैट विल बी डन बाय द ह्यूमन बीइंग taking care of the social and different other aspects of the society. Then innovation through intuition, और कई बार मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, कई बार जब आप टॉयलेट में होते हैं तो टॉयलेट करते करते या आप जब वॉशरूम में होते हैं वहाँ कोई बहुत एकाएक आइडिया आ जाता है और वहाँ से आप आके कोई प्रॉब्लम को इवन बहुत सारे जो साइंटिस्ट होते हैं वो सोचते सोचते या उनको रात में उनको आइडिया आता है और वो इमीडिएट लिखते हैं और उससे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जो प्रॉब्लम कई दिन से फेस कर रहे होते हैं, यू माइट बी ऑब्जर्व दिस काइंड ऑफ थिंग कि हम आराम कर रहे थे, सो रहे थे या वॉशरूम में होते हैं तो उसमें आप बहुत गाना गा रहे होते हैं या तो आप बहुत डीप थिंकिंग में, तो आपको सोल्यूशन मिल जाता है। वो सोल्यूशन जो है वहाँ भी वो ह्यूमन का जोड़ रहेगा, वो एआई कभी भी ट्यूशन से नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको ऐसी जगह जाने की जरूरत नहीं है और उसके बाद वो यूनिक कैपेबिलिटी नहीं है। देन द केयर गिविंग एंड एल्डरली सपोर्ट, तो जो केयर गिविंग जो है यानी जो नर्सेस का जो रोल है और जो एल्डरली सपोर्ट है वहाँ पे भी ह्यूमन बीइंग का एंगेजमेंट रहेगा, वहाँ पे एआई इसको नहीं कर पाएगा। देन द कल्चरल प्रिजर्वेशन, और कल्चर को जो प्रिजर्व करने के दैट इज नॉट पॉसिबल टू एआई, वहाँ पे ह्यूमन बीइंग ही कल्चर को जनरेशन टू जनरेशन उसको कैरी फॉरवर्ड करेगा। देन स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल इंक्वायरी दैट इज पॉसिबल टू द ह्यूमन बीइंग। देन द एथिकल ओवरसाइट ऑफ टेक्नोलॉजी, देन क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन नॉवेल सिचुएशन, एक स्पेसिफिक सिचुएशन में किसी प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करें, कैसे हैंडल करें, वो हम ह्यूमन बीइंग ही कर सकते हैं, एआई नहीं कर सकता है। नाउ द सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट, मैं अन्ना जी का एग्जांपल देके पहले ही बता चुका और आप अपने रामदेव जी का एग्जांपल देख रहे हैं कि वो लोग भी ये चीज को कर सकते हैं। नाउ एट लास्ट हियर द थिंग इज दैट the way we are observing, we have discussed everything starting from the concept, classification, component, then the social change, then inequality and the future of human, then finally the areas where the role of human being will exist indefinitely, and the areas or the sectors which are likely to be severely affected from the AI that we have also discussed. But the thing is that we need not to bother too much. At the same time, we need to be very much friendly and come closer with the technology. We need not to be against technology as the age that we are gradually forwarding are coming before us. In that, the technological friendship and technological familiarity, that is very much important. Next thing, the participation of male and female in the society, that is very much important. What we see, we are giving more importance to the child only for the science study, और जो हमारी गर्ल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कि तुम बीएड कर लो, तुम हिस्ट्री पढ़ लो, तुम ये पढ़ लो और तुम ये मत पढ़ो, तुम्हें जरूरत नहीं, तुम्हें टीचर बन जाना है और इसी से काम हो जाएगा। तो ये जो माइंडसेट है इसे हमें चेंज करना पड़ेगा और हमें गर्ल्स को भी साइंस की एजुकेशन देना पड़ेगा, जिससे कि जो हमारे साइंस के अंदर जो गैप है, जो मेल डोमिनेंस है, जब तक वो मेल डोमिनेंस खत्म नहीं होगा तो एआई के जो बहुत सारे जो ह्यूमन माइंड या जो मेल माइंड से डोमिनेटेड जो प्रॉब्लम्स है, जो वायरस है वहाँ पे, वो तभी सॉल्व होगा जब वहाँ पे जेंडर न्यूट्रलिटी या जो गैप है वो मिनिमाइज होगा। सो दीज आर सजेशन फ्रॉम माय साइड, एंड एट लास्ट वी नीड नॉट टू थिंक सो मच, वी नीड नॉट टू टेक इट नेगेटिवली कि ये बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। प्रॉब्लम पहले भी ऐसे ही सोचते थे जब कंप्यूटर आया था कि कंप्यूटर हमारी जॉब खाएगा, एक तरीके की जॉब खाएगा, लेकिन दूसरे और तरीके की तमाम जॉब हमारे बीच में बढ़ेगी। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम बढ़ा के चलने की जरूरत है और टेक्नोलॉजी को अपना फ्रेंड मानना होगा। यही हमारे जो है विकसित भारत 2047 के लिए हमारे लिए सबसे जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर द प्रेजेंट लिसनिंग। सो नाउ द सेंटेंस जिससे कि वो फील आए, तो या परिसरेत उपस्थित सर्व मान्यवर सदस्यांचे मी मनापूर्वक आभार व्यक्त करतो। धन्यवाद सर। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित इस राष्ट्रीय सम्मेलन के बीच भाषण में आपने एआई के विविध रूपों पर प्रकाश डाला और साथ ही जनरल एआई और सुपर एआई की विस्तृत जानकारी हम सबको दी। साथ ही में एआई ज्ञान का भंडार है, परंतु ज्ञान का निर्माता नहीं, यह भी बताया और यह विश्वास भी दिलाया कि एआई के इस क्रांति के युग में मानव
इस